فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی. اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے بے شک میرے رب نے فحش کاموں کو حرام کیا ہے، ناجائز ٹھہرایا ہے، چاہے بدکاری کے کام چھپ کر کیے جائیں یا اعلانیہ کیے جائیں. اور اللہ رب العزت نے گناہوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کے شریک ہونے کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کام کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کی نسبت سے ایسی بات کہو جس کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ واقعتاً اللہ رب العزت نے کہی بھی ہے یا نہیں کہی. حدیث پاک میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑی بلنڈر، سب سے بڑی مسٹیک، سب سے بڑا جس کے اندر وائس جس کو کہتے ہیں، سب سے بڑی جو اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا کوئی مد مقابل بنا لو، جو حقوق اللہ کے ہیں وہ اس کو دینے لگو. پرستش اللہ کی ہونی چاہیے، تم دوسروں کی پرستش کرو. محبت اللہ سے ہونی چاہیے مگر تم مال دولت کو پوجنے لگو، جن سے مخالف کو پوجنے لگو. اللہ بے چون و چرا جو کہتا ہے وہ ماننے کا اس کا حق ہے، اس کا فرض ہے کہ مانو اس کی بات. یہی کام تم کسی بندے کے ساتھ کرنے لگو تو ان تجعل للہ ندن، مد مقابل، اوپوننٹ، حریف، برابر کا کسی کو اللہ کے بنا دو، حالانکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا. تو ہو کیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دیکھیں آدمی کس چیز سے پیدا ہوا ہے. تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس کے مد مقابل کسی کو بناؤ. میں نے کہا واقعی یہ گناہ بہت بڑا ہے. اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ بڑے ہو کر تمہارا کھانا کھائیں گے، یہ جائیداد بڑھ جائے گی، اتنے بچوں کو کیسے پال پاؤں گا، کہاں سے نظم ہوگا. اگر یہ جذبہ ہے تو یہ گناہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو. پہلے زمانے میں باقاعدہ یہ ہوتا تھا کہ لے جا کے قبر میں دفن کر دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا ایسی بچیوں سے. اب انسان چونکہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے، پروگریسو ہو گیا ہے، سائنس میں بہت ترقی کر چکا ہے، تو اب پیدائش سے پہلے ہی مار دیتا ہے. یہ خباثت ہمارے ملک میں ہے کہ بچے کا جینڈر پوچھنا. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی، یہ منع ہے، قانونی طور پر پروہیبٹڈ ہے، منع ہے. کیوں؟ مار دیتے ہیں بھائی بچیوں کو. دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. افریقی ملک کو ہم خوب روتے رہے کہ افریقہ میں بڑی غربت ہے، ہم بہت اچھے ہیں، ہم سے اچھے ہیں وہ اس معاملے میں. وہاں جینڈر بتا دیا جاتا ہے پہلے دوسرے تیسرے مہینے میں بتا دیتے ہیں آپ کی جو اہلیہ کے پیٹ میں ہے وہ بچی ہے. لیکن ہمارے ہاں منع ہے. کیوں؟ کیونکہ مار دیتے ہیں. ترقی ہو گئی نا. ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے. میں نے پوچھا پھر تیسرا بڑا گناہ کون سا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی جو محرم ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بہن ہو،
चाहे वो बेटी हो, तुम उसके साथ जिना की कोशिश करो, बदकारी की कोशिश करो, उसे वरगलाने की कोशिश करो, लाइन मारो, असर के बाद मगरिब बाद जाके इशारेबाजी करो, ये सबसे बड़ा गुनाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़नी ज़ानी हिना यज़नी व हुवा मुमिन, कोई जिनाकार जिना करते हुए मोमिन नहीं रहता, अगर उस वक्त वो मर जाए खबीस तो जहन्नम में जाएगा, वो मोमिन नहीं है। वला यशरबुल खमरा हिना यशरबुहा वो मुमिन, वो शराब पीते हुए कोई शराबी मोमिन नहीं होता, मर जाएगा इस हालत में, वो जहन्नमी है। वला यस्रिकु सारिकुन हिना यस्रिकु वो मुमिन, चोरी करते हुए वारदात करते हुए अगर कोई मर जाए तो मोमिन नहीं होता। वला यंतहिबु नहबतन यरफउ अन्नास इलैहि फीहा अबसारहुम हिना यंतहिबुहा वो मुमिन, और चैन छिनैती करते हुए चलती हुई ट्रेन से लेकर के मोबाइल भागते हुए मर जाए, वो मोमिन नहीं है। ऐसी छिनैती, ऐसी छीन कर भागते हुए कि लोग देखें, अरे देखो उचक्कर भाग रहा है, उचक्का, वो मोमिन नहीं है। मेरे भाई, ये दोस्तों और साथियों, आज दुनिया में जैसे फहाशी का, बेहयाई का, उरियानियत का, इबाहियत का और जिनसी बेरारवी का तूफान आया हुआ है, ये हम सबकी आंखों के सामने है। जो लोग भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं, ऐसा नहीं कि दुनिया में पहली बार हो रहा है, हमेशा बदकार लोग रहे, हमेशा जिनाकार लोग रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर सबसे बेहतर दौर था, उसमें भी जिना की सजा दी गई, ये अलग बात है। उस वक्त इंसानों का ज़मीर इतना तवाना था, इतना मजबूत था कि गुनाह करने के बाद खुद अदालत में आकर कहा कि हमसे गलती हुई है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में गवाहों की बुनियाद पर किसी को भी जिना की सजा नहीं दी गई, जिसको भी सजा दी गई उसने गुनाह कर लिया तो उसका ज़मीर कचोके मार रहा था, जी नहीं पा रहा था वो गुनाहों का बोझ लेकर के। क्या मैं अल्लाह को मुंह दिखाऊंगा, कैसे मैं अल्लाह के रसूल के सामने जाऊं, कैसे मैं मस्जिदों में नमाज पढ़ूं, कैसे मैं सहाबा किराम से बात करूं, कैसे मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं, मैं तो गुनाह का बोझ संभाले हुए हूं। तो ये जो बेकली और बेचैनी और इस्तिराब की जो कैफियत थी, इसने मजबूर किया आकर कन्फेस करें, एतराफ करें हमसे गुनाह हुआ तो उनको सजा मिले। मगर उस दौर में भी थे बुरे लोग। अलबत्ता जो अब अनप्रेसिडेंटेड चीज जो हुई है, जो एक गैर मामूली चीज हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई थी, वो है कि इस गुनाह को लाइट बना दिया गया है, हल्का बना दिया गया। जिना करना बड़ी बात नहीं रहा, इट्स नॉट ए बिग डील, इट डजंट मैटर, कोई बात ही नहीं है। लड़की भाग गई कोई बात नहीं, लड़का भाग गया कोई बात नहीं। ये जो एक पूरा मीडिया लगा हुआ है, पूरी जो दज्जाली तहजीब लगी हुई है, गुनाहगार हमेशा रहे हैं, मगर गुनाहकार को ग्लोरीफाई करना, उसको अच्छा बयान करना या गुनाह की शनाअत और कबाहत को हल्का बयान करना, यह इससे पहले कभी नहीं हुआ था, यह आज हो रहा है। इससे पहले ही मैंने बात रखी थी कि हमारे नौजवान बच्चों को क्या करना चाहिए। देखिए, इस्लाम दीने फितरत है, कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ है, मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। तो एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी के तौर पर उसने बुराइयों को रोकने के लिए दो तरह की तदाबीर इख्तियार की है। एक वो तदबीर है बुराई अभी हो नहीं, प्रिवेंटिव मेजरमेंट, इसे प्रीएम्प्टिव स्टेप्स इसका हम कह सकते हैं, प्रिकॉशनरी स्टेप्स। अभी जो गुनाह हुआ नहीं है उसकी रोकथाम के लिए कुछ इंतजाम किए जाते हैं, और एक बार गुनाह हो जाए तो फिर उसकी सजा के लिए इंतजाम किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदकारी से रोकथाम के लिए जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स रखे हैं, जो प्रीमोनिटिव लॉस रखे हैं, जो कायदे और ज़ाब्ते बनाए हैं, उनका अगर मुताला करना है तो हमें सूरह नूर पढ़नी चाहिए। सूरह नूर का खासा यह है कि इसमें जिना की सजा बयान की गई है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा, दोनों में से हर एक को 100 कोड़े लगा दो। तो कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम है, ये दीन अल्लाह का उतारा हुआ दीन है, इसमें एक साथ बैक वक्त सजा भी सुनाई गई, और ये जुर्म ना हो उसके इंसदाद की तदाबीर, उसके एहतियात की तदाबीर, उसके इम्तिना की तदाबीर भी कुरान में बयान की गई। जब इस लिहाज से हम सूरह नूर का मुताला करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें अगर हमारा समाज या हमारे ख़ानदान के लोग या बहैसियत मजमूई मुसलमान इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह समाज में जिना की वारदातें कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, बदकारी नहीं फैलेगी। उसमें जो पहली चीज़ हमें स्ट्राइक करती है, अपील करती है, वो यह है कि इस्लाम ये कहता है, सूरह नूर ये कहती है, कुरान ये कहता है, अल्लाह उसके रसूल ये कहते हैं कि शादी ब्याह आसान हो,
समाज में बेनिकाहे लोग कम हो ही नहीं, बल्कि आम तौर पे लड़के जवान होते हैं, शादी की फिक्र होती है, माँ बाप को होती है, होनी चाहिए। बेटियां जवान होती है, फिक्र होती है, दामनगिर होती है, रातों को नींद नहीं आती, होनी चाहिए। चलिए, बेटी है, शादी की बात है। अलबत्ता जिनकी बीवियां मर चुकी हैं, 2-4 साल साथ रहे, 2-3 बच्चे हुए, बीवी का इंतकाल हो गया, अब वो हीरो बनते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी लगाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। ऐसी अगर शोहर मर जाए तो बीवी हीरो बनती है कि मैं नहीं करूंगी शादी, मैं तो अपने बच्चों के लिए डेडिकेटेड हूं। कुरान कह रहा है ऐसे लोग नहीं होने चाहिए समाज में। औरत जवान हो, बेशोहर की हो, हर एक, खास तौर पे जिसके दिल में मरज होता है, उसको भूखे भेड़िए की तरह देखता है, उसको एक लाइबिलिटी समझता है, एलिजिबल शिकार समझता है, विक्टिम समझता है कि इस पर मैं अपना हरबा चला सकता हूं। तो कुरान क्या कहता है सूरह वानकिहुल अयामा मिनकुम, ये नहीं कह रहा नौजवानों की शादी करो, वो तो करनी ही चाहिए, नौजवान लड़कियों की शादी तो करनी ही चाहिए। कहा अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो बेशोहर के हों औरतें और तुम में से जो बीवी के हों मर्द, उनकी शादियां कराओ। गौर कीजिए, ये नहीं कहा कि वल यनकाहिल अयामा मिनकुम, तुम में से जिनकी बीवियां मर गई वो शादी कर लें दूसरी, ना ना, उनको हुक्म नहीं दिया, आपको हुक्म दिया, समाज को हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि समाज रखने डालता है। कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी पुरसुकून गुजरे, उसकी जिनसी ख्वाहिशात पूरी हो, मगर समाज अरे दूसरी शादी करना चाह रहा है, अरे ये मसला हो जाएगा, अरे बच्चों का क्या होगा, ये रखना डालता है, रुकावटें खड़ी करता है। तो कुरान कह रहा है समाज को मुखातब करके वह अनकिहुल अयामा मिनकुम, जो बेनिकाहे मर्द हैं, जो बेनिकाही औरतें हैं, जिनकी बीवियां मर चुकी हैं वो मर्द, और जिनके शौहर मर चुके हैं उनकी भी शादियां तुम कराओ। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और शादियों में आमतौर पर जिन लोग नजरअंदाज किया जाता है कि कोई घर में काम कर रहे हैं, पूरी जवानी गुजर गई, पूरी जवानी गुजर गई, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि ये नौकर है, ये हमारा गुलाम है, ये नौकरानी, इसकी भी जरूरत है, इसके भी तकाज़े हैं, वो जिंदगी उसकी अपने बच्चों की फिक्र है। तो कुरान कह रहा है वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमा, अपने तुम्हारे यहाँ जो नौकर हैं, जो गुलाम है, जो कनीज हैं, उनकी भी आपस में शादियां करो, बेशादी का नहीं रहना चाहिए। वहीं यकुनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, और देखिए गुर्बत की वजह से, कम तंगदस्ती की वजह से शादी से ना रुकें, अल्लाह ताला बेनियाज करेगा। नौजवानों से अल्लाह के रसूल ने फरमाया या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, ए नौजवान लड़कों और लड़कियों दोनों मुखातब हैं, अल्लाह के नबी सबके लिए रसूल हैं, तुम में से जो भी शादी कर सकता है जरूर शादी करे, क्योंकि शादी करने से फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निगाहें नीची हो जाती है, व अहसनु लिलफ़रज, शर्मगाहें महफूज हो जाती हैं, व मन लम यस्तती, अगर महरूमी की वजह से, हालात के जबर की वजह से कोई नहीं कर सकता, फ़अलैहि बिस्सौम, तो वो रोज़ों का एहतमाम करे। जब भी देखे उसके अंदर इश्तियाल आ रहा है, शहवत की आग बढ़े, रोज़ों का एहतमाम करे। फ़इन्नहु लहू विजा, क्योंकि ये उसके लिए शहवत की आग को बुझाने वाला है। हमारे नौजवानों ने कहा कि अल्लाह से दोनों ही बातें नहीं करनी, हमें दोनों ही बातें नहीं करनी। क्या शादी भी टाइम पे नहीं करनी है? हाँ, खाना है, ताकतवर चीजें खानी है, बॉडी बनानी है ना, जिम जाना है भाई, स्मार्ट दिखना है, मुकव्वी चीजें खानी है, बॉडी बनानी है, अच्छा लहीम शाहीम दिखना है, रोजे तो कमजोर हो जाएगा आदमी। तो हमने अपने अमल से दोनों चीजें मना कर दी, ना तो शादी टाइम पे करनी है और ना ही रोजों का एहतमाम करना है। तो फिर क्या नतीजा होगा, वो है जो हमारे सामने